पुत्र को इस पृथ्वी पे हमारे लिए भेजने के लिए धन्यवाद। What shall I say, Lord? The glory that you displayed on the cross. वो जो महिमा आपने क्रूस पे दिखाया प्रभु, उसके में क्या बात है It is प्रभु, unexplainable, oh God. उसको हम वर्णन भी नहीं कर Our सकते lives हैं। have been changed. The glory displayed on the cross. हमारा जीवन बदल गया क्योंकि आपकी महिमा के कारण जो क्रूस पर Lord, प्रदर्शित हुआ। you displayed the glory of your Son. Our life has been transformed. आपने आपके पुत्र के महिमा को प्रकट किया और हमारा जीवन परिवर्तित उसके We'll कारण never हो be गया the क्रूस same पर। again by the precious blood of Jesus. और यीशु के मूल्यवान लहू के द्वारा हमने उद्धार पाया है। Lord, thank you for this great sacrifice 2000 years ago you did for इस us. बड़ी बलिदान के लिए धन्यवाद देते जो आपने 2000 साल पहले In कुर्बानी Jesus' दी। name we pray. और यीशु के नाम में हम मांगते हैं। Everybody agreed and said amen. सब लोग सहमत कहे जोर से आमेन। The Bible says on Thursday it was a Passover. और बाइबल कहता है कि जो गुरुवार का दिन था वो फसह का दिन था। Passover is nothing but the celebration of God released Israelites from the bondage. और फसह और कुछ नहीं, केवल वो इजराइलियों को उसने उस दिन को बंधन से छुटकारा दिया। Scripture reveals 4,000 years ago, the history says that when the Israelites were under the bondage of the Egyptians, the blood of the lamb, God instructed Moses to set them free. और बाइबल कहता है कि जब मिस्र में ये इजराइल लोग बंधन से थे तो प्रभु ने आदेश दिया था मूसा को और कुछ आज्ञाएं दी थी, मेमने को बलि करके वो लहू को लगाना है और उसके बाद वो छुटकारा And पाएंगे। that is called the Passover lamb. और उसी कहते कि फसह का मेमना, Because the Israelites, they were under bondage for many years, 40 years in the क्योंकि bondage. इजरायली लोग बहुत सालों से जो है बंधन में थे, 40 साल And के the लिए। Pharaoh was not releasing them from the bondage. और फरोन उन्हें बंधन से आजाद नहीं कर रहा Now था। God made a provision, giving instruction to Moses and saying, Moses, this is my instruction, take the lamb which is without blemish, without spot, sacrifice it and apply on the doorpost for each family. और मूसा को परमेश्वर ने ये आदेश दिया है कि मेरी बलि के लिए एक ऐसे मेमने को चढ़ाना है जो बिल्कुल निष्कलंक और निर्दोष है। And that we read the Passover plan of God in Exodus chapter 12 और onwards. फिर निर्गमन के 12 के आगे हम पढ़ते हैं उस फसह की कुर्बानी बलि के विषय And में। exactly 2000 years back, और ठीक 2000 साल पहले, and the Bible says the Passover lamb was revealed in Jerusalem. और बाइबल कहता है कि ये फसह का मेमना यरूशलेम में प्रकट हुआ। And it started, God told Abraham in the beginning of Genesis, उत्पत्ति के पहले में प्रभु ने अब्राहम से कहा, you come up with Isaac and sacrifice the lamb. तू इसहाक के साथ आकर उस मेमने को बलि दे। So in Jerusalem we see the Temple Mount, that is called Mount Moriah. तो यरूशलेम में हम टेम्पल माउंट को देखते हैं, उसे पर्वत मोरिया कहते हैं। And Isaac and Abraham, they're walking for the sacrificial अभी offerings. इसहाक और अब्राहम जो है बलि चढ़ाने के लिए साथ में चल रहे And the हैं। Bible says Isaac called, Father, where is the lamb for the sacrifice? और इसहाक अपने पिता को आवाज देकर कहता, पिता पिता वो बलि कहाँ है चढ़ाने के The लिए। moment when he said, Father, where is the sacrifice lamb? और जैसे उसने आवाज दी अपने पिता को, कहाँ है वो मेमना बलि चढ़ाने के The लिए, heart of the father was broken. पिता का दिल पूरा टूट गया। Hallelujah. Where is the lamb? कहाँ है वो मेमना। Hallelujah. Bible says in Genesis 22:8, बाइबल कहता है कि उत्पत्ति का 22:8 it में, is a prophecy spoken about our Lord Jesus Christ through Abraham. तो वो भविष्यवाणी थी वो अब्राहम के द्वारा प्रकट हुई। He said, Abraham responded to Isaac and said, God will provide a lamb for himself. वचन Wow. कहता है कि अब्राहम ने कहा कि हे मेरे प्रभु परमेश्वर, होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेंगे। A few days back, the word of the Lord came to me. कुछ दिन पहले प्रभु का वचन मेरे पास आया I was been in deep prayers and God spoke to me this. और गहरी प्रार्थना में था, तब प्रभु ने मुझसे ये बातें He said to की। me, son, man's promises will break, but God's covenant will not break. उसे कहा, बेटा लोग तो अपना वादा करके तोड़ देंगे, लेकिन प्रभु जो है वादा करता है उस वाचा को वो कभी नहीं Today तोड़ता है। people promise and they break off and they go off. आज लोग वादा करते हैं और उस वादा को तोड़ के निकल जाते But हैं, when God gives the word, it becomes a covenant
that covenant will never be broken. लेकिन प्रभु कोई वादा करता है तो वो एक वाचा बन जाता है और वाचा को कभी नहीं तोड़ता Now है। God makes a covenant with Abraham. अभी प्रभु वाचा बांधता है अब्राहम के साथ What is में। the promise? What is the covenant? I'm going to take you to the promised land. तो वो वाचा क्या है कि मैं तुझे प्रतिज्ञा के देश में ले जाऊंगा। You know, in Genesis 15:13 to 17, the Bible says, उत्पत्ति का 15:13 से 17 कहता है, you know, God is promising Abraham, I will take you to the promised land. प्रभु वादा करता है कि अब्राहम अभी मैं तुझे वो वादे के देश में ले जाऊंगा। And you know, in Exodus we see chapter 12, God is taking the people out of bondage to the promised land. और निर्गमन के 12 अध्याय में हम देखते हैं प्रभु लोगों को बंधन से निकालकर वो प्रतिज्ञा के देश में ले And जा रहा that है is called the Passover meal. और इसे कहते हैं कि फसह का भोजन। In 2 खाना। Chronicles chapter 34 verse 31, in the days of Josiah, the book of the law was found about the Passover. दूसरा इतिहास का 34-31 वचन कहता है कि योशाया के समय में उन्होंने वो व्यवस्था की पुस्तक उन्हें मिल गई। They found the book of the law to reaffirm the Passover lamb. तो ये जो व्यवस्था की पुस्तक उन्हें मिली और उन्हें उस बात से खातरी हो गई कि हमें ये फसह का पर्व मनाना है। In 2 Chronicles chapter 36 verse 19, the Bible says, you know, they performed the Passover lamb to slain and to offer to the temple. The new second temple was built. और वो कहते हैं कि दूसरा इतिहास का 36-19 में कि वो जो है बलि, परमेश्वर का बलि वो है वहां पर वो चढ़ाया गया You know, वो मंदिर के for the लिए, dedication of the second temple, वो दूसरे मंदिर के समर्पण के लिए। they found the law book और उनको वो व्यवस्था की and पुस्तक मिल how गई to prepare the lamb for the sacrifice. और उस मेमने को किस रीति से तैयार करना है बलि चढ़ाने के लिए। And the Bible says, बाइबल कहता है Passover lamb slain in preparation for Passover meal. और फसह का जो मेमना है वो तैयार किया गया बलि चढ़ाने के लिए, उस Means- फसह के खाने के लिए। Jesus said, I will build my temple in 3 days. Means I will go on the cross, I will die as the Passover lamb, and the church of Jesus Christ will be established. और यीशु ने कहा कि मैं मेरे Come on, मंदिर को, इस मंदिर को 3 दिन में फिर से बनाऊंगा, यानी मैं मरूंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा और मेरी कलीसिया की स्थापना होगी उसके। So, to celebrate the Passover feast, तो ये फसह का पर्व मनाने के लिए you know, God instructed Moses certain things. प्रभु ने मूसा को कुछ बातों का आदेश दिया He था। said, उसने कहा, Moses, मूसा I'm going to instruct you something. अभी मैं तुझे कुछ ऐसे बातें समझा The रहा हूँ। Passover should be in the month of the new beginnings. ये जो फसह जो मना रहे हो उस महीने के शुरुआत में होना जरूरी है। Anyway, praise God, through Good Friday we can reveal Jesus Christ. लेकिन प्रभु को धन्यवाद है कि गुड फ्राइडे के द्वारा हम यीशु को प्रकट कर सकते The हैं। feast of the Passover begin in the beginning of the month of Hebrew calendar. तो ये फसह का जो पर्व है वो हिब्रानियों के कैलेंडर के अनुसार वो महीने का, If you साल का पहला महीना है जो शुरुआत में होता है। If you read Exodus chapter 12 verse 2, it says in the beginning of the month. जब आप निर्गमन का 12 अध्याय दूसरा वचन पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है महीने का पहला दिन। And in Exodus chapter 12, 3 to 6, the Bible says the lamb has to be hidden for 4 days. और इब्रानियों में वचन ऐसा कहता है कि मेमने को 4 दिन तक छिपाकर रखना पड़ता है। Hallelujah. Jesus entered Jerusalem on the 10th day. यीशु मसीह ने यरूशलेम में 10वें दिन को प्रवेश And he किया was slain on the cross on the 14th day. और 4 days. 14वें दिन को उसे क्रूस पर चढ़ाया गया। That's what Luke chapter 19:37 says. इसलिए लूका का 19:37 ऐसा कहता है। Matthew 22:15 to 24, it talks about it. मत्ती का 22:15 से 24 इस वचन को बताता है। God instructed Moses, फिर तीसरी बात प्रभु ने मूसा को आदेश दिया, the lamb which should be the firstborn. वो मेमना जो पहलौटा होना जरूरी है। Hallelujah. The firstborn in the Jewish community or the Israelites, they have to segregate for the offering for God. तो ये जो पहलौटा है उन्हें पहला जो है परमेश्वर के लिए उसे पहले मेमने को अलग करना पड़ता था, रखना पड़ता प्रभु को बलि चढ़ाने That's के why लिए। till today in our south we follow this principle. I don't know how.
I don't know whether through the Bible they know or not. Anything that is firstborn is given to God. तो हमारे साउथ में जो है आज भी तक ये चलता परंपरा चलता आया है कि कभी भी मुझे पता नहीं कैसे उन्होंने फॉलो किया बाइबल के द्वारा या कैसे उन्हें ये मिला, लेकिन जो भी पहलौठा है वो पहला प्रभु को चढ़ाते I am हैं। the firstborn given to God. तो from my मैं भी family. पहलौठा हूँ, माँ बाप के द्वारा मैं समर्पित किया हूँ प्रभु। The firstborn is without blemish, without spot. तो Hallelujah. पहला जो पहलौठा है वो निष्कलंक है, निर्दोष है, बिना खोट का है। Prophetically, I want to tell you this morning, this Good Friday, if you are a firstborn, must and sure you need to segregate yourself to the Lord, to the service of the Lord. तो आज मैं नबूवत के रूप में आप सबसे कहना चाहता हूँ, अगर आपके घर में आप सबसे पहले बच्चा हो या पहलौटा हो, तो जरूर है कि आपको अपने आप को अलग करना है और आप प्रभु के समर्पित होकर उसकी सेवा करनी Whether है। your parents dedicate or not, if you are firstborn, you need to serve the Lord. माँ बाप ने तुम्हारा समर्पण किया है या नहीं किया होगा, फिर भी लेकिन आपको प्रभु की सेवा करनी है, अपने आप को समर्पण करके उसकी सेवा करनी If है। you don't serve the Lord, the consequences are different. अगर प्रभु की सेवा नहीं करोगे तो उसका नतीजा अलग है। The firstborn can give many reasons not to serve the Lord. तो एक पहलौठा बहुत कारण दे सकता है कि मैं प्रभु की सेवा नहीं करना When चाहता Anna हूँ। was born, जब एना का जन्म हुआ था Sister Rita gave in my hands. और रीटा ने पासवान के हाथ में उसे You दिया, ask her what I did. सिस्टर रीटा I से पूछा मैंने lifted क्या Anna किया, to the Lord. This is the firstborn. I'm giving him to Lord. और मैंने मेरे हाथों से उसको पहला ऊंचा उठाया और कहा ये मेरा पहलौठा है, मैं प्रभु को समर्पित करता हूँ। Hallelujah. Since then, I have decided in my heart, God, now upon her life, you will make a decision what she has to do for you. और मैंने फिर तभी प्रभु से कहा कि आज के बाद प्रभु आपको इसके जीवन को नियंत्रित लेना है और जो उसे करना है आपके लिए, आप उसका डिसीजन लीजिए। That means God instructed Moses, the lamb should be the firstborn. तो प्रभु ने मूसा को क्या बोला था कि वो मेमना है, वो पहलौठा होना That है। means the firstborn has to be set aside for the service of God. यानी ये जो पहलौठा है उसे पहले अलग किया जाता है, अलग रखा जाता है प्रभु की सेवा के लिए। So how many of you are firstborn? Lift your hands. तुम में से कितने लोग हैं यहाँ वो पहले बच्चे हो घर के, Come on, firstborn. पहलौठा हो, Lift your पहला, hand. Lift your पहले hand. हो, Firstborn. सबसे So बड़े you हो। all meet me after the service. I want to anoint you so that you can serve आप the लोग Lord. सब लोग सभा के बाद पास्टर से मिले, पास्टर आप सबको अभिषेक करना And चाहते all हैं the आज। other are thinking, what about me? बाकी के लोग सोचे हमारा क्या होगा। You're all double portion, Elisha. आप लोगों को दुगना अभिषेक एलिया के समान। Amen. First, let Elijah work for God. पहले एलिया को प्रभु के लिए सेवा करने दो। Amen. Amen. The second thing, God instructed Moses, it should be a male. तो दूसरी lamb. बात है, प्रभु ने मूसा को ये आदेश दिया था कि वो मेमना नर होना है। Because why male? Romans क्यों 5:12, नर? please. Romans 5:12. रोमियो का 5:12 पढ़ेंगे। Just as through one man sin entered the world, जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप ने प्रवेश किया जगत में and death through sin, और पाप के द्वारा मृत्यु आई, and thus death spread to all men, इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्य को फैल गई, because all sinned. इसीलिए कि सब ने पाप किया। That means by one man sin entered the world and death, और क्योंकि एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया and death also came. और फिर मृत्यु भी आया, So that's why the male lamb, इसी रीति से वो जो नर मेमना है, because Adam the firstborn sinned, क्योंकि understand this, आदम जो पहलौटा था उसने पाप किया, and God made a provision that male, और वो जो पहला जो नर है it should be sinless, spotless, और without blemish, वो निर्दोष और निष्कलंक होना है, जिसमें जरा भी खोट नहीं होनी and that चाहिए। lamb to be sacrificed. वो मेमने को कुर्बानी देना है। And the Bible says Jesus was the firstborn, a male. God gave his only son to be sacrificed on the cross of Calvary. और वचन कहता है कि यीशु मसीह पहलौटा था और वो नर था और वो मेमने बलि चढ़ाया गया। And Moses, God instructed Moses. और प्रभु ने मूसा को वो आदेश दिया In Exodus chapter 12 verse 5, it निर्गमन should का be 12:5 without में, spot or blemish. निर्गमन का 12:5 में कि वो मेमना बिल्कुल निर्दोष होना है और निष्कलंक होना Your है। lamb shall be without blemish. तुम्हारा जो मेमना है वो निर्दोष होना A है male of the first year. और पहले वर्ष का ही नर होना If you है। read in 1 Peter chapter 1, 18 to 20, अगर पहला पत्रस का
1:18 से 20 यदि आप पढ़ेंगे What does it mean without blemish or without spot? तो उसका मतलब क्या है कि ये निष्कलंक होना है, उसमें कोई खोट God नहीं है, instructed निर्दोष होना है। Moses to Moses and tell Israelites to inspect that lamb carefully whether this lamb has any corruption in it. तो प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था कि उस मेमने को जांचना है, परख कर देखना है कि इसके अंदर कोई भी खोट नहीं है, निष्कलंक है और ये पूरी तरह से निर्दोष है। This lamb should be God's standard. यानी ये प्रभु के लेवल के अनुसार ये मेमना होना है The lamb should be perfect. और ये मेमना पूरी तरह से परफेक्ट यानी सिद्ध Without होना है। spot, without blemish. इसके ऊपर एक भी दाग नहीं होना है और पूरी तरह से निर्दोष रहना होना Hear an है। amen. क्या एक आमेन सुन सकते हैं? Hallelujah. We need a God standard lamb. तो हमें जो है एक मेमना चाहिए जो प्रभु के लेवल के अनुसार If you है। read in 1 Peter 1:18, 19 and 20, Jesus was the perfect lamb. अगर पहला पत्रस का पहला अध्याय 18, 19, 20 आप पढ़ोगे, वहां लिखा है कि यीशु मसीह ही वो सिद्ध मेमना ठहरा। Hallelujah. Jesus was inspected as without spot and without blemish. तो यीशु मसीह को परखा गया जो बिना खोट का और बिना बिल्कुल निष्कलंक और निर्दोष था। Some of the people played the major role in inspecting God's son. और यीशु मसीह को निर्दोष और निष्कलंक ठहराने में कुछ लोगों का बड़ा हाथ रहा। भागीदार है। Hallelujah. भागीदार है। Hallelujah. Sometimes कभी कभी I feel I am the lamb meant to slain. मुझे ऐसा लगता है मैं ही वो मेमना हूँ जो वध के लिए तैयार हो रहा And some हूँ। people, some believers, they test me. कुछ विश्वासी है जो मुझे ही परखते हैं। Exactly. Jesus was inspected, by some of the major people in the history. इतिहास में कुछ ऐसे लोगों ने यीशु मसीह को भी ऐसे ही जांचा। Hallelujah. इतिहास कहता है God's lamb was tested. प्रभु का मेमना जांचा गया।